پہ نادانوں نے، اس بات پہ نادانوں نے سوچا نہیں کچھ بھی، اس بات پہ نادانوں نے سوچا نہیں کچھ بھی، بے علی سجدوں سے ملتا نہیں کچھ بھی، اس بات پہ نادانوں نے بے علی خود کی جاگیر ملے گی، بے علی خود کی جاگیر ملے گی، اللہ کے قانون میں ایسا نہیں کچھ بھی، اس بات پہ نادانوں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ توڑا در خیبر کو میرے مولا علی نے، توڑا در خیبر کو میرے مولا علی نے، اوروں نے بجز توڑا نہیں کچھ بھی، اس بات پہ نادانوں نے حیدر کی غلامی کا اثر اتنا لیا ہے، حیدر کی غلامی اثر اتنا لیا ہے، قمر کی نگاہوں میں یہ دنیا نہیں کچھ بھی، بات پہ نادانوں نے یہ کہہ کے پڑھی نہ دے علی میرے نبی نے، یہ کہہ کے پڑھی نہ دے علی میرے نبی نے، جلد آؤ کہ غیروں کا بھروسہ نہیں کچھ بھی، بات پہ توڑا در خیبر کو میرے مولا علی نے، توڑا در خیبر کو میرے مولا علی نے، اوروں نے بجز کے توڑا نہیں کچھ بھی، اس بات پہ نادانوں نے سبحان اللہ اللہم صل علی محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارے دیگر صلوات اللہم صل علی محمد نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون
लुआब रसूल शीर बतूल, अली का खून लुआब रसूल शीर बतूल, मिले हैं ये अनासिर तो फिर हुसैन बना। अब मैं गुजारिश करूंगा बिरादर रिफा सुल्तान से कि वो आए और नजराना अकीदत पेश करें। वर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले वज्जिल फरजहू। सलवात भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शान में ये कताएं जो मिदहते अब्बासे अलमदार करेगा, हर दौर में हर तौर से मसरूर रहेगा। दिल से जो कहे जाएगा या हजरत अब्बास, छाया रहेगा सब पे, किसी से न दबेगा। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अयाम अज़ा की ये आखिरी मजलिस है, तो ये मस्सी के बिस्मिल्लाह। ना महमिल है ना हादज है, ना लश्कर की वो सजदज है, ना सर पे अलम ना चादर है। अल्लाह ये कैसा मंजर है, मुसाफिराने मुसीबत वतन में आते हैं, सफर से आते हैं सौगाते दर्द लाते हैं। किया सलाम मोहम्मद के आस्ताने को, कटा के आए हैं ज़हरा के सब घराने को। ना कर कबूल तू हम बेकसों के आने को, ये नोह कहते हैं और अश्क खून बहाते हैं। मदीना हम तेरे वाली को आए हैं खोकर, मदीना कूफे में सर नंगे हम फिरे दर दर। मदीना दाग़े रसन है हमारे शानों पर, उठा के हाथ मदीने को ये सुनाते हैं। हर एक कदम है भूखा कब लबों पर बैन नहीं, हमारे जिंदा पज़हरा का नूर ऐन नहीं। मदीना अकबरो कासिम नहीं, हुसैन नहीं, ये कैसे कैसे जवां थे जो याद आते हैं। मदीने वालों कहो इस बहन की क्या तकदीर, जो देखे अपने बरादर के हल्क पर शमशीर। लहू में गर्क जो देखे हुसैन की तस्वीर,
کہوں میں کیا یوں ہی بھائی کا سر دکھاتے ہیں، بتاؤ کہتے ہیں کیا سب اس اماں جائی کو جو 40 تلک دے کفن نہ بھائی کو، بہن دکھائے گی کیا کس طرح خدائی کو، بہن دکھائے گی کیا منہ کس طرح خدائی کو، کرے کفن دیا ہے نہ ان کی لحد بناتے ہیں۔ چلا بشیر یہ دیتا ہوا خبر ہر جا، مگر محلہ ہاشم میں دیکھتا ہے کیا کہ ایک مریض سرے راہ ہے کھڑی تنہا، ہے منتظر کہ وہ کنبے کے لوگ آتے ہیں۔ خبر یہ پھیلی تو ماتم ہر ایک گھر میں ہوا، نکل نکل پڑی سب عورتیں برہنا پا، گری زمین پہ صغرا کہ اس پہ چرخ گرا، جو سوگوار ہیں وہ صغرا کے پاس آتے ہیں۔ فضائیں درد میں لے کر اداسیاں آئیں، سفر سے لٹ کے ادھر بھوک کی پیاسیاں آئیں، اٹھو رسول تمہاری نواسیاں آئیں، کہ خود کو اونٹوں سے اہل حرم گراتے ہیں، مسافران نے مصیبت سفر سے آتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ بشر کا ناز نبوت کا نور عین حسین، بشر کا ناز نبوت کا نور عین حسین، جناب فاطمہ زہرا کے دل کا چین حسین۔ کبھی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج، کبھی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج، کہا نماز نے بے ساختہ حسین حسین۔ اب میں گزارش کروں گا جناب قبلہ و کعبہ محترم سخاوت خان چندرالوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مجلس سے خطاب کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و مومنین کی ولادت کو کعبے سے نکال دیں تو وہ کہے گا علی کا ظہور ہوا، یعنی ولادت تو ہوئی ہی نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ظہور سے مراد یہ ہے کہ نور کا ظہور ہوا۔ تو جب نور کا ظہور ہوا تو پھر طہارت و غیر طہارت کا تو مسئلہ ہی نہ رہا۔ پھر ان سے سوال کرنا ہوگا کہ یہ جو سب کے دروازے بند کیے تھے مسجد نبوی سے، علی و بطول کا دروازہ کھلا رکھا تھا، اس سے مراد نور تھا یا جسم تھا؟ یہی تو ہم نے بتانا ہے کہ یہ نور مجسم ہے، آئے پیکر بشری میں ہے۔ اگر آپ اس اعتبار سے کہیں کہ یہ نور ہے
تو بالکل حرج کوئی نہیں کہ نور ظاہر ہوا ہے کعبے میں، مگر ولادت سے انکار یہ بہت بڑی خیانت ہوگی اور یہ جسارت ہوگی فضائل مولا کائنات میں، فضائل ابو طالب میں، فضائل فاطمہ بنت اسد میں، فضائل رسول۔ بے شک بے شک، واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ علی کی اماں بھی اتنی پاک ہے کہ ان کے لیے جنمگاہ بنا دیا ہے کعبے کو۔ حالانکہ انما یرید اللہ تو نازل ہوگی مدینے میں، اور یہ بیٹا اور ماں پاک ہیں مکے میں۔ یہ ولادت ہی تو بتاتی ہے علی کی کہ علی آئے تطہیر کے محتاج نہیں ہے اپنی طہارت کے لیے۔ آئے تطہیر اعطاء طہارت نہیں، اعلان طہارت۔ سبحان اللہ۔ جیسے حضور نے 40 سال کے بعد اعلان رسالت کیا ہے، عطا رسالت نہیں ہوئی 40 سال کے بعد۔ النبی نبی ولو کان صبیا، الامام امام ولو کان صبیا۔ بطن مادر میں کیوں نہ ہو، نبی نبی ہوتا ہے، امام امام۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ۔ ہمیں یہ بتانا ہے دنیا کو، یہ کوئی کنٹروورسی شیعوں میں کبھی نہیں رہی ہے، یہ ظہور کی اور ولادت کی۔ بے شک۔ آیت اللہ العظمیٰ حافظ شیخ بشیر حسین نجفی صاحب قبلہ نے مجھے فرمایا کہ اگر ظہور سے مراد یہ ہو کہ جیسے آپ کسی اپنے دوست کو کہیں یا بزرگ کو کہتے ہیں احتراماً تشریف لانا، یہ اگر تو مراد نور کا ظہور ہو تو کوئی حرج نہیں۔ نور کا ظہور بھی مولا علی علیہ السلام کا کعبے میں ہوا ہے۔ البتہ ولادت سے انکار نہیں کرنا، یہی تو بتانا ہے کہ ان کا جو اسٹیٹس نور کا ہے وہی ان کے بدن کا اسٹیٹس ہے۔ ان یہ جو پیکر بشریت میں آئے ہیں، بشر کی طرح کوئی ایسی ناپاکی ان کے قریب کبھی نہیں۔ لہذا یہ کچھ ایسی غلط فرسودہ روایات آ گئی ہیں، غلط چیزیں نعوذ باللہ پڑھی جا رہی ہیں۔ جیسے بھی کسی صاحب نے کہا کہ حضور بھی محتاج تھے علی کے، استغفر اللہ، یہ جسارت ہے حضور، یہ گستاخی ہے شان رسالت میں۔ حضور محتاج نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کی تمام جنگیں جو جیتی ہیں سوائے 2 کے وہ علی نے جیتی ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ، اور ہے ناصر رسول ہیں، ناصر رسول ہیں، نفس رسول ہیں، رسول کے کندھوں پر مولا علی کے پاؤں ہیں، خیبر کے فاتح ہیں، احد کے فاتح ہیں، حنین کے فاتح ہیں، بدر کے فاتح ہیں، تمام جنگوں کے فاتح ہیں۔ ان کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ان کا ذکر عبادت ہے، ان کی محبت عبادت ہے۔ حضور ایک پرندہ نہیں کھاتے جب تک علی نہ آئے، وہ قسیم النار والجنت ہے، وہ مولود حرم ہے اور شہید محراب۔ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل ماشاءاللہ 30,000 فضائل تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے سنے تھے، 30,000 فضائل۔ ہمارے بھائیوں کو چاہیے وہ پڑھیں، ایسی غلط باتیں کیوں پڑھ رہے ہیں کہ جو خواہ جس سے عبد و معبود کو ٹکرایا جائے، رازق و مرزوق کو ٹکرایا جائے۔ آپ ذرا دیکھیں مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ ہے، مثلا غرر الحکم ہے، کتاب و علی ہے، دیوان مولا کائنات ہے، خود بہار کے اندر جو سرمنز ہیں مولا کے، یا اس کے بعد امام حسن کے جو خطبے ہیں، یا اس کے بعد امام حسین کے جو خطبے ہیں 114، یا پھر امام سجاد کے جو خطبے ہیں درباروں کے اندر، یا پھر بی بی زینب کے جو خطبے ہیں، ام کلثوم کے خطبے، بی بی رقیہ کے، بی بی فاطمہ کبریٰ کے، ہر خطبے میں آپ دیکھیں گے حضور کی نہج الفصاحت سے لے کر ہمارے مولا علی کی نہج البلاغت تک، اور مولا علی کے سرمن سے لے کر امام مہدی علیہ السلام کے ان سرمنز تک جو آپ آ کے پڑھیں گے، ہر معصوم نے حمد خدا پہلے کی ہے، تعریف رسول بعد میں کی ہے، بعد میں اپنا تعارف کرایا ہے۔ وہی شیعوں کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ ہم پکے اور سچے موحد ہیں، ہم مولا علی علیہ السلام کو اللہ نہیں سمجھتے، مولا علی کو ہم ولی اللہ سمجھتے ہیں، مولا علی کو ہم جنب اللہ سمجھتے ہیں، مولا علی کو ہم نفس اللہ سمجھتے ہیں، مولا علی کو ہم عین اللہ سمجھتے ہیں، مولا علی کو ہم لسان اللہ سمجھتے ہیں، مولا علی کو ہم وجہ اللہ
समझते हैं, मौला अली को हम यदुल्लाह समझते हैं, मौला अली को हम आयतुल्लाहिल कुबरा समझते हैं, मौला अली को हम हुज्जतुल्लाह समझते हैं, अल्लाह नहीं समझते। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह एक है, माबूद एक है, वही खालिक हकीकी है, वही राज़िक हकीकी है, वही मुनइम है, वही मुजमिल है, उसी के हाथ में इज्जत व जिल्लत है, वही मुहयी है, वही मुमीत है, जिंदा भी वो करता है, मारता भी वो है। मासूम जब भी कोई मौजज़ा दिखाते हैं तो बेइज़्निल्लाह होता है, अल्लाह ने उन्हें पावर दी होती है या पावर अता फरमा देता है। इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं। आजकल एक गिरोह ये भी खड़ा हो गया है, नऊज़ुबिल्लाह। एक तो ये खड़ा हो गया जो अली को अल्लाह कहने लग गया है, और एक वो है कि जो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह न होने के बराबर है तकरीबन, ये बाहर है, शुक्र खुदा है। हमारे यहाँ अमेरिका में मुझे आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला कि जिसने अली को अल्लाह कहा हो। गलती में कोई शेर पढ़ दे तो अल्लाह उनको हिदायत करे और इस्लाह कर देनी चाहिए। मुझे याद है आज से 20 साल पहले मेरे सामने भी नुसैरियों के कसीदे पढ़े जाते थे, मगर आज वही नुसैरियों के कसीदे पढ़ने वाले आज वही बड़े मुवाहिद बन गए हैं। यहाँ पर कोई अली को अल्लाह नहीं कहता, अमेरिका में अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह कोई कहेगा भी नहीं। बाहर से जो आ रहे हैं क्लिप उनमें होता है। तो हम ना तो अली को अल्लाह कहते हैं और ना मौला अली को अपने जैसा कहते हैं। एक ये भी अजीब बेवकूफ़ी चल पड़ी है कि नासबियत की तरफ, तकसीर की तरफ, कुछ गुलूब की तरफ माइल हो रहे हैं और कुछ तकसीर की तरफ माइल हो रहे हैं। हम शिया न वहाबी हैं और न गाली हैं, पक्के अली के मुवाली। हमारा यही अकीदा है। और अगर कोई गलत चीज़ पढ़े, सीर साहब आप तो माशाल्लाह खुद समझदार हैं, अगर कोई गलत पढ़े तो आराम से, प्यार से, बाद में, उस वक्त नहीं टोकना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, फसाद नहीं करना, बाद में बता देना है कि बेटा या भाई या बुजुर्गवार, ये जो आपने पढ़ा है मेहरबानी फरमाइए ज़रा इस एक शेर को निकाल दीजिए, बाकी आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा ये माहौल ठीक हो जाएगा, बल्कि ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है इंशाल्लाह। और मैं गुजारिश करूँगा खुदारा एक दूसरे पर मुकस्सिर और नुसैरी गाली के इल्ज़ाम न लगाएं, फतवे न लगाएं। ये फतवे लगाने से नुकसान हो रहा है, हमारे दुश्मन हंस रहे हैं, आप दुश्मनों को मत हंसाइए। ये आज की जो तकरीर है, इसलिए आखिरी तकरीर है तो मैं समझ भी कर रहा हूँ अल कुरान सेंटर की तरफ से, माशाल्लाह अल हुज्जत टीवी वाले भी बड़ा खूबसूरत इनका रिज़ल्ट है जो भेज रहे हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, वक़ार को भी, ओन को भी, निसम को भी, और इसी तरह अल मेहदी टीवी वाले भी, हुसैन रज़ा भी हैं, अल्लाह इनको भी अजर दे, जज़ा दे। और जो पढ़ने सुनने वाले जनाब सैयद अफर सुल्तान साहब को, मीसम रैली को, वक़ार हाबिब को अल्लाह अजर दे, जज़ा दे। शुरका को भी, मलिक नईम हैदर को भी, सैयद मोहम्मद रज़ा को भी, ये बच्चे जो बैठे हैं, साकिब मियाँ को भी, और सबको अल्लाह अजर दे, जज़ा दे। जो बीवियाँ भी पुश्ते पर्दा है, अल्लाह उनको भी सलामत रखे, मरीज़ों को अल्लाह शिफा अता फरमाए, मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। आज की तकरीर यूँ समझ लीजिए कि एक खुलासा है, एक गेस्ट पेपर है। ये समझाना है कि जो इम्तिहान हमसे लिया जा रहा है, इस इम्तिहान में हमने पास होना है, फेल नहीं होना। और वो एक तो अक़ीदा अपना दुरुस्त रखना है, न माइल बे गुलूब हों, न माइल बे तक़सीर हों। इसलिए कि मौला अली फरमाते हैं, हलक फ़ी रजुलान मुहिब्बुन गालिब व मुबग़िज़ुन क़ालिब। दो किस्म के लोग मेरे बारे में हलाक हो गए, एक वो जो गुलूब की तरफ जाते हैं, मोहब्बत करते हैं मगर गाली हो जाते हैं, और एक वो कि जो तक़सीर करके काली हो जाते हैं। एक पीछे रह जाने वाले, एक आगे बढ़ जाने वाले, दोनों से मौला अली बरात कर रहे हैं। मौला अली खैरुल उमूर औसतुहा सिरात मुस्तकीम, और सबील वाले रास्ते को पसंद करते। लिहाजा ये ला तुशरिक बिल्लाह है, ये कल मैंने आयत पढ़ी थी, वैज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। शिरक नहीं करना। हमारी मजालिस में, महाफिल में, जश्न में, क्लिप बनाते वक्त, नारे लगाते वक्त गुलूब नहीं करना। गुलूब
शरअन हराम है और बंदा दायरा इस्लाम से खारिज। तकसीर भी इब्ने तैमिया वाली, इब्ने क़य्यम वाली, सऊदी अरब के नजरिए वाली, वो भी नहीं रखनी, इसलिए कि उससे भी इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पक्का मौला ही रहना है। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह आदिल है। उसने 1,24,000 अंबिया भेजे, उनमें से हुजूर खातमुल अंबिया वल मुरसलीन है, जो खत्म नबुव्वत का कायल नहीं, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। और उस कंटिन्यूएशन के लिए मरियम व बतूल मासूम बीबियाँ हैं, इन दोनों का एहतराम भी ज़रूरी है, ख़ास तौर पे बीबी पाक का, जिनका इक़्तिदार क़यामत के दिन भी होगा। और 12 इमाम अल्लाह की ज़ात ने हमारी हिदायत के लिए भेजे हैं। 11 के 11 इमाम सिर्रन या जहरन शहीद कर दिए और 12वां इमाम हमारा पर्दा गैब में मौजूद है। हम सब उनके इंतज़ार का ज़मीना हमवार कर रहे हैं। और ये मजालिस जहाँ हम माजी को जिक्र करते हैं, हाल में अपनी नस्ल आबाद करने का सामान करते हैं, घरों की आबादकारी का सामान करते हैं, नस्ल बचाते हैं, खुद को जन्नती बनाते हैं, जहन्नम से बचाते हैं, और डे टू डे लाइफ में वे ऑफ लाइफ सीखते हैं इन मजालिस से। वही हम इंतज़ार भी कर रहे हैं, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया अफज़लुल इबादत इंतज़ारुल फरज, सबसे बेहतरीन इबादत गैबत के ज़माने में आखिरी का इंतज़ार का। इंतज़ार दो किस्म का होता है, एक गाफिलों जैसा इंतज़ार होता है और एक एक्टिव इंतज़ार होता है। आपने ट्रेन पे जाना था, आप स्टेशन पे बैठे थे, प्लेटफॉर्म पे गलत प्लेटफॉर्म पे बैठ गए, ट्रेन चली जाएगी, ये गाफिलों जैसा इंतज़ार है। या आपने जाना तो था, टिकट कहीं गिरा दी और पैसे भी नहीं रखे हुए, ये भी गाफिलों जैसा इंतज़ार है। या आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए, टिकट भी सब कुछ है मगर टाइम गलत पढ़ लिया, आपने पीएम की बजाय एएम पढ़ लिया, या एएम की बजाय जहाज आपका इंतजार नहीं करने वाला, ट्रेन आपका इंतजार नहीं करने वाली, वो वक्त पे चली जाएगी। जब आपकी आदत ही बन गई है हर ओकेजन में, हर इवेंट पे लेट आने की, तो ऐसे ना हो इमाम का जहाज कूफे पहुंच जाए, अभी आप मक्के भी ना पहुंचे। इसलिए मेहरबानी फरमाकर आप हजरात को जरा कुछ अपने अंदर तब्दीलियां भी करनी है, कुछ चेंजेस भी करनी है। अय्याम आज़ा गुजर गए, हम अव्वल वक्त में नमाज के पाबंद हुए या नहीं, हमने कुरान पढ़ने की आदत शुरू की या नहीं, हम सुन्नती रोजे रखने लगे या नहीं, वाजिब रोजों का अहद किया या नहीं, हम ज़कात देते हैं, खास तौर पे जो ये जो क्वालिफिकेशन की ज़कात है, टैलेंट की ज़कात है, इल्म की ज़कात है, नशर करना देते हैं या नहीं, खुम्स अदा करते हैं या नहीं, जिहाद बिन नफ्स करके अपनी नफ्सानियत पे कंट्रोल रखा है या नहीं किया, रखा, अमर बिल मारूफ करते हैं या नहीं, नही अनिल मुनकर करते हैं या नहीं, तवल्ला व तबर्रा रखते हैं या नहीं, माँ बाप का एहतराम जिंदा या मुर्दा का करते हैं या नहीं, अपने अपने मरहुमीन को उज़्कुरू मौताकुम बिल खैर, खैर से याद करते हैं या नहीं, शब जुमा में फातिहा पढ़ते हैं या नहीं, शब जुमा में नजर व न्याज देते हैं या नहीं, शब जुमा में हदीसे के साथ ज़ियारत इमाम हुसैन दुआए कुमैल पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, मजलिस हुसैन में एहतमाम से जाते हैं या पार्टीबाजी से जाते हैं, महफिलों में पार्टीबाजियों से जाते हैं या इमाम हुसैन या अहले बैत की वजह से जाते हैं, मातम हुसैन में कोई नवाबी तो नहीं रखते, कोई नखरा और नाज तो नहीं करते, फर्श अदा पे बैठने के बावजूद गुरूर और तकब्बुर तो नहीं रखते, हसद और निखवत तो नहीं रखते, लेग पुलिंग तो नहीं करते, र्यूमर्स तो नहीं फैलाते, झूठ के प्रमोटर तो नहीं है, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा तो नहीं करते, मोमिन की गीबत तो नहीं करते, मोमिन पे तोहमत तो नहीं लगाते, लोगों का दिल तो नहीं दिखाते, हुकूकुल्लाह अदा करते हैं, हुकूकुन नास भी अदा करते हैं, फिर तो हम एक्टिव मुंतजिर हैं इमाम ज़माना। हमारी मजलिसों में, हमारी महफिलों में, हमारी गैदरिंग्स में, हमारे इज्तिमाआत में, हमारी जमाआत व जुमा में, हमारे यहाँ मराकिज़ व मदारिस व मकातिब में, मसाजिद में अगर कोई गैर आ जाए तो वो यहाँ से क्या सबक लेकर जाएगा? आया अखलाकियात हमारे इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल
अखलाक की मंजिल पर हैं। आया हमारी शादियां गमियां सारी इमाम हुसैन के तरीके पे हैं? क्या हमारे घरों के माहौल ऐसे हैं कि अगर ऑल ऑफ द सडन इमाम ज़माना आ जाए तो हमें ये कहना ना पड़े कि हुजूर ज़रा हमें तैयारी करने दीजिए, तशरीफ ले आइए? तो अगर हम अपने आम तौर पे, तो मैं समझता हूँ मौलाना के लिए भी हमारे घर आमादा नहीं है, तो जब मौलाना को आप घर में नहीं बुला सकते तो मौला को कैसे बुला? और आप जानते हैं कुले अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून, अमल करते जाओ। कुरान कहता है अल्लाह भी देख रहा है, रसूल भी देख रहे हैं और मासूमीन भी देख रहे हैं। मेरे और आपकी जिंदगी को मासूमीन देख रहे हैं। मेरे और आपके घरों की इत्तला मासूम को मिलती है। हमारे इमाम ज़माना को हमारे अच्छे और बुरे अमाल की इत्तला मिलती है। आप बताइए, अगर इमाम को पता चले कि आज मेरे चाहने वाले के 99 अमाल में से 98 अमाल गुनाह थे और एक नेकी थी, तो इमाम क्या समझते? फिर हम गाफिल मुंतजिर हैं। आपके ईमान पे मैं कोई शक नहीं कर रहा हूँ, माशाल्लाह आप सबका ईमान अच्छा है, मगर ईमान के साथ तौअम करें, अमल को भी, किरदार को भी, अखलाकियात को भी, थियोलॉजी के साथ प्रैक्टिस की भी जरूरत है। अगर आप जबान से हज हज करते रहें तो हज नहीं होता जब तक चला न जाए। अगर आप नमाज न पढ़ें और बिस्तर पे नमाज करते रहें तो नमाज नहीं होती है। अगर आप खुम्स ज़कात करते रहें और हिस्सा न निकालें तो शुमार नहीं होता है। ईमान के साथ अमल की जरूरत है। उलाइका साबुल जन्नते हुम फीहा खालिदून। अगर मोमिन भी हो, आमिल सालेह भी हो, तो वो हमेशा का जन्नत है। अय्याम अज़ा खत्म हो गए। हम कौम है उस नबी की मिल्लत है, उम्मत है जिसके रोजे पे लिखी है हदीस। ये जुमला लिखा है कि मैं कयामत के दिन शफाअत करूंगा ले आहलिल कबाइर इन्ना शफाअती यौमल क़ियामते ले आहलिल कबाइर। कयामत के दिन बड़े बड़े गुनाहगारों की मैं सिफारिश करूंगा। उसकी उम्मत होकर अगर हम जहन्नम में चले जाएं तो बड़े हैफ की बात। कसीमुन नार वल जन्नत, इमाम हो, जन्नत हो हमारी और अपनी प्रॉपर्टी में न जा सके, अपने बुजुर्गों की प्रॉपर्टी में, तो फिर हमने बड़ा घाटे का सौदा किया। सैयदा शबाब आले जन्नत हमारे इमाम हो और फिर भी हम जन्नत से महरूम हो जाए तो खसारे का सौदा है। और हमारी सैयदा तो निसाइल जन्नत, जन्नत की बीबियों की सरदार, बल्कि खातून जन्नत हमारी आकाज़ादी हो और फिर भी हम महरूम जन्नत हो। लिहाजा हमने अपने किरदार और अमल को इस मंजिल पर ले जाना है कि हम कब्र में जब मौला अली आए तो शर्मिंदा ना हो, कब्ज़ रूह के वक्त जब 14 आए तो शर्मसार ना हो, और क़यामत के दिन जब बीबी पाक की हुकूमत हो, बीबी पाक का नाका आए और वो हुसैन के अज़ादारों को जन्नत में ले जाना चाहें, तो अहले बैत और फरिश्तों के सामने हम शर्मसार। ये आज की तकरीर का खुलासा है। इसको ज़रा आम कर दीजिएगा, दोस्तों को भेज दीजिएगा, ग्रुप्स में भेज दीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले असल हदफ जो है वो ये है कि हुसैनियत से रग़बत, हुसैनियत को इम्प्लीमेंट करना और यजीदियत से नफरत अमली तौर पर, और यजीदियत को तबाह बर्बाद करना, हुसैन से मवद्दत और मोहब्बत रखना, यजीद और यजीदियत से बराअत रखना। लानत का एक मफहूम ये भी है, लानत कहते हैं दूरी को, लानत दूरी को कहते हैं, जिससे आप दूरी रखते हैं उससे खुद ब खुद लानत हो जाती है, बरात हो जाती है। हमने पूरे अबू सुफियान के किरदार से, यजीद बेनमाज था, यजीद अव्वल वक्त में नमाज नहीं पढ़ता था, हमें अव्वल वक्त में नमाज पढ़नी चाहिए। यजीद शराब खार था, हमारे बच्चे कभी शराब के करीब न जाएं। यजीद म्यूजिक का बड़ा शौकीन था, हमारी बीवियां और हमारे भाई, हमारे बच्चे बच्चियां कभी म्यूजिक के करीब न जाएं। यजीद डांस करवाता था, हम कभी डांस पार्टियों में नजर न आए। यजीद अबू नवास नामी बंदर को उलमा का लिबास पहना कर, इमामा अबाकवा
पहना के नचवाता था। हम कभी उलमा की इंसल्ट और तौहीन न करें। यजीद ने खाना काबा की तौहीन की थी, हम कभी खाना काबा को पुष्ट न करें। यजीद ने मस्जिद नबवी को इस्तबल बनाया था, हम अपने अपने महलों और शहरों की मस्जिदों की इंसल्ट न करें। यजीद ने असहाब रसूल पर हमला किया था, हम बावफा असहाब रसूल पर कभी हमला न करें। यजीद के बाप ने उम्मुल मोमिनीन और अमीरुल मोमिनीन का कत्ल किया था, कोई दकीका ऐसा ना हो कातिल अली और कातिल बीबी आयशा से हम मोहब्बत रखें, हर लम्हे में नफरत करें, हर लम्हे पे लानत करें और पूरी दुनिया को बताएं कि हमारा शिया मजहब ये है, ना हम ज़ौज रसूल के कातिल को रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, ना अली के कातिल को रज़ी अल्लाह अन्हु। इसलिए इन मजलिसों का होना जरूरी है और कोशिश की जाए आइंदा सालों में खुतबा, जाकिरीन, मुकर्रिरीन, बाद उलमा भी मेहरबानी फरमाएं, थोड़ा रिसर्च वर्क कर लें, थोड़ी पढ़ाई कर लें, ताकि कोई ऐसी चीज़ मिंबर से न बयान हो कि जो बेसर पाके हो, या जिसका रेफरेंस न मिले, या जो हमारे मजहब की बदनामी का सबब हो। और मैं ये गुजारिश करूँगा अपने तमाम अमेरिका में रहने वाले शिया सुन्नी भाइयों से इत्तेहाद का भी ख्याल रखें, और शिया भाई बहनों से मैं दरख्वास्त करूँगा आपस में तफरके और आपस में फ़िरका बंदियाँ ख़त्म कर दें, मोहब्बत और प्यार से रहें, लड़ाई झगड़े न करें, एक दूसरे को नीचा न दिखाएं, आवाज़ें न कसें, फतवे न लगाएं, मराकिज़ में दंगा और फसाद न करें। इंशाअल्लाह मैं यकीन से कहता हूँ कि पूरे साल में जो दर्स हमने सीखा है इमाम हुसैन और उनके अहले बैत व अंसार असीरान कूफा और शाम शुहदाए करबला से, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब इंशाअल्लाह 1443 हिजरी का मुहर्रम आएगा तो हम एक बेहतरीन मोमिन के तौर पे, अज़ादार के तौर पे, मुहिब्बे अहले बैत के तौर पे, मवद्दत ज़िल कुर्बा रखने वाले के तौर पे इंशाअल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की किश्ती नजात पे कदम रखेंगे और इमाम के मिसबाहुल हुदा से मुनव्वर। बस तकरीर यहाँ तमाम हो गई। आज ज़ाहिर है मैंने जानबूझ के इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का तज़किरा नहीं किया, इसलिए कि कल की मजालिस आ रही है, कल और परसों की आप टीवी पे देख लेंगे इंशाअल्लाह। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने भी तहज्जुद की नमाज की ताकीद फरमाई है, फरमाया है कि इकामन रकत हमारा शिया पढ़ता है, हमारे मोमिन की निशानी है। अगर आप तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते तो आज से शुरू कर दें। इसी तरीके से अल खातम बिल यमीन, अगर दाएं हाथ में आपने अंगूठी नहीं पहनी हुई तो पहनी शुरू कर दें, ये इमाम कहते हैं हमारे शियों की निशानी। और बिस्मिल्लाह को बुलंद आवाज से पढ़ना, और इसी तरीके से सजदागाह पर सजदा करना। वैसे तो 10 निशानियां हैं, बाज़ ने 5 लिखी है, बाज़ ने 10 लिखी है। इन तमाम निशानियों से भी हमें मुत्तसिफ होना है। अलामात मोमिन जो कुरान और हदीस में बयान की गई उनसे भी मुत्तसिफ होना है, और शिया की जो निशानियां बयान की गई हैं उन सब से मुत्तसिफ हों, ताकि जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है उसमें कामयाबी से हमकिनार हो। और इमाम अस्करी ने ही फरमाया फ़अम्मा मन कान मिनल फ़ुक़हा, फ़ुक़हा में से जो भी हो, साइनन लिनफ़्सिही हाफ़िज़न लिदीनिही मुखालिफ़न लिहवाहु मुतीअन लिअम्रि मौलाहु फलिल अवामि अन युक़ल्लिदू। तक़लीद मौलवियों की मार्केटिंग नहीं है, इमाम हसन अस्करी की मार्केटिंग। लिहाजा तकलीद करनी है तो इमाम हसन अस्करी को खुश करना है, अइम्मा अतार को खुश करना है, नबी करीम को खुश करना है। ये दीन की रिक्वायरमेंट है। तकलीद नहीं भी करेंगे तो नुकसान अपना होगा कि अमाल कबूल नहीं होंगे, उसमें ना इमाम का कोई नुकसान है ना उलमा का। अल्लाह ताला रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह उज़्मा हाज सैयद अली खामनाई दामत बरकातो, मर्ज आज़म आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सीस्तानी दामत बरकातो, और मर्ज कबीर आयतुल्लाह उज़्मा ज़ईमुल हौज़तिल इल्मिया नजफ़ अल अशरफ हाफिज़ शेख बशीर हुसैन नजफ़ी मुद्दज़िल्लुहुल आली दामत बरकातो, और आयतुल्लाह उज़्मा हाज शेख इसहाक़ फयाज़ दामत बरकातो, आयतुल्लाह उज़्मा हाज सैयद सईद अल हकीम दामत बरकातो, आयतुल्लाह उज़्मा नासिर मकारिम शिराज़ी दामत बरकातो जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, और दूसरे उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह उज़्मा शेख वहीद खुरासानी दामत बरकातो, तीसरे उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह उज़्मा शेख जाफ़र सुबहानी दामत बरकातो, चौथे उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह उज़्मा
शेख हुसैन नूरी दामत बरकातो और मेरे बुजुर्ग आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद शुबैरी जंजानी दामत बरकातो, मेरे बुजुर्ग आयतुल्लाह अल उज़्मा साफ़ी गुल पायगानी दामत बरकातो, आयतुल्लाह अल उज़्मा अलवी गुरगानी दामत बरकातो और जो दीगर मराजे किराम हैं कुम के, सबके लिए मैं दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला नजफ़ के हौज़े को भी जिंदा और सलामत रखे, कामयाब व कामरान फरमाए। मराजे जो अरबा हैं उनको भी अल्लाह ज़िंदगी दे, और जो कम से कम 15 मराजे हमारे 15 से 20 मराजे हमारे कुम अल मुक़द्दस में हैं उनको भी अल्लाह ज़िंदगी दे। मशहद के भी जो मराजे हैं अल्लाह उनको भी ज़िंदगी अता फरमाए, और मशहद के हौज़े को, कुम के हौज़े को, नजफ़ के हौज़े को, हौज़ा इल्मिया को, हमारा भी छोटा सा हौज़ा है हौज़ा इल्मिया अल महदी अमेरिका का, इसको भी अल्लाह तरक्की दे, और दुनिया के हौज़ात इल्मिया को तरक्की हो। जितने मुज्तहिदीन हैं उनको भी अल्लाह सलामत रखे। बड़े सगीर हिंदो पाक के जितने हैं, ये जितने भी उलमा नॉर्थ अमेरिका में खिदमत कर रहे हैं, वेस्ट ईस्ट में खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगी दराज करे। सब मराकिज़ दीन को भी अल्लाह सलामत रखे, और हर मोमिन और मोमिना को अल्लाह जिंदा और सलामत रखे। हर सैयद और सैयदा को अल्लाह जिंदा और सलामत रखे। हमारे आपस में मोहब्बत के रिश्ते हों, उख़्वत व मुआख़ावत के रिश्ते हों, और नफ़रतें दूर हो जाएं, और जो बैरूनी ताकतें शियों को आपस में लड़ाना चाहती हैं उनको हम नेस्त नाबूद करके यद वाहिदा बन के सही मौला अली के चाहने वाले इमाम हुसैन के अज़ादार बन के चले। अल्लाह अज़ादारों को भी नमाजी बनाए, नमाजियों को भी मातमी बनाए, और जो हमारे अज़ादार मजलिसों में बाहर खड़े रहते हैं कि मजलिस ख़त्म होगी तो अंदर आएंगे, उनको अल्लाह मजलिस में बैठने की तौफीक दे, और जो मजलिस ख़त्म होते ही मातम छोड़ के चले जाते हैं अल्लाह उनको भी मातम करने की तौफीक दे, और ये अंजुमन बाजी ख़त्म हो, और एक दूसरे को नीचा दिखाना और ऊंचा दिखाना मेरिट पे हो और प्रेजुडिज्म पे ना हो। अल्लाह हम सबको अखलाक मोहम्मदो आले मोहम्मद से मुत्तसिफ। बस आज हमने जैसे हमारे सैयद साहब ने माशाल्लाह मरसिया बहुत खूबसूरत पढ़ा कि ये जो आखिरी मजलिस है, बेसिकली ये दिन यानी आज का जो दिन है, ये जो शब लगी है, इस शब में मुज़ाफ़ात मदीना में सादात बनी हाशिम पहुंच चुके। 7 रबीउल अव्वल को आज शब हफ्तों में, यानी आज शब के किसी हिस्से में ये काफिला मदीना के बाहर पहुंच गया। और बस मैं इतना ही पढ़ूंगा, 4 से 5 जुमले पढ़ूंगा, बहुत तवील ज़हमत नहीं दूंगा। पहले जुमला तो ये पढ़ूंगा कि जब गए थे तो 53 महमल थे, जब वापस आए तो कुल 3 महमल थे। जब अरेस्ट हुई थी बीबियां तो 86 बीबियां थी। वापस जो मदीना पहुंची 12 थी। जो बच्चे करबला से कैदी बनाए गए वो कुल 64 थे। जो वापस पहुंचे वो कुल 5 थे। अब जरा अंदाजा लगाएं कि क्या कलेजा है आबिद बीमार का, जो भरा घर लेके गए थे और खाली वापस आए। क्या सब्र और इस्तिकामत है। तभी तो रिवायत है कि जब क़यामत का दिन होगा तो आवाज आएगी हातिफ की, या सैयद साबिरीन, है साबिरों के सरदार, तकद्दम, आगे कदम रख। तो मूसा और ईसा आगे बढ़ेंगे, आवाज आएगी तुम नहीं, हुसैन का बेटा आ गया। अल्लाह अकबर। ये अजीब मंजिल है। बीबी ज़ैनब ने भी एक बयान किया था जिसे फारसी के मौरिख ने लिखा कि जब बीबी आई तो बीबी ये बयान करती है, ताज बर सर रफ्तबूदम, खाक बर सर आदम आदम, बा बिरादर रफ्तबूदम, बी बरादर। भाई लेके गई थी, 9 भाई मारे गए, बगैर भाइयों के वापस आई। मेरे सर पे ताज था इस्मत और इमामत का, जब मैं गई थी, आज मैं सर में खाक लेकर आई। अल्लाह अकबर। जब काफिला आ गया, बाहर रुक गया, तो बीबी ज़ैनब ने आबिद बीमार से कहा कि बेटा
ہمیں سوچنا ہے، ذرا ہم رکیں گے یہاں کہ ہم اپنے زندہ رشتہ داروں کو کیا کہیں اور کیا نہ کہیں. غیرت مند تھے، کیسے بتائیں گے؟ ساری تفصیلات کیسے بتائیں گے؟ نانا کو، اماں کو، بھائی کو کیا کہنا ہے؟ ہم سوچیں گے، ذرا سوچ بچار کر کے چلیں گے. اسی اثناء میں راوی نے لکھا کہ امام سجاد نے کہا بشیر سے، بشیر تمہارا باپ شاعر تھا، کیا تم بھی شاعر؟ کہا میں بھی شاعر اہل بیت ہوں قبلہ. کہا تم اس طرح کرو، پھر منادی بن کے ندا دو کہ سادات آ گئے. جو اشعار ہے قیامت کے اشعار، آ کر ندا دی. یہ رواج تھا، جب بھی کوئی منادی آتا تھا کسی شہر میں تو اللہ اکبر کہہ کے آتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند کر کے. جیسے پہنچے محلہ بنی ہاشم کے قریب تو اب بشیر نے اشعار میں منادی بن کے ندا دیا. یا اہل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین فادمعی مدرار والجسم منہ بکربلا مزرج والراس منہ علی القنات یدار. بشیر کہتے ہیں بنی ہاشم کے محلے والوں، مدینے والوں، ابھی تم زندہ ہو. جس کا حسین جیسا بادشاہ مارا جائے وہ رعیت کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ تمہیں میں خبر دینے آیا ہوں، تمہارے بادشاہ کا سر نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا تھا اور بدن تپتی ریتی پہ پڑا تھا. بشیر کے عجب جملے. بشیر کہتے ہیں میں جا رہا تھا، گھوڑے پہ سوار تھا. جب میں محلہ بنی ہاشم سے گزرا، صدر دروازہ تھا محلہ بنی ہاشم کا، جیسے بڑی حویلیاں ہوتی ہیں نا، ان کے بڑے بڑے دروازے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا اس دروازے میں سے ایک دراز قامت بی بی، ایک چھوٹی بی بی کے سر پہ دست شفقت رکھے ہوئے تیز تیز قدم بڑھاتی ہوئی آ رہی ہے، اور اس کے آگے ایک چھوٹا سا بچہ چلتا ہوا آ رہا ہے. بچے کی عمر بمشکل 5 سال ہوگی. اس نے میری ابا کا دامن پکڑ کے کہا یا شیخ تو نے اعلان کیا کہ بنی ہاشم آ گئے، اتنا بتا رجا ابی عملہ، کیا میرا بابا آ گیا کہ نہیں؟ میں نے پوچھا مسمو ابی کا، تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ابو الفضل العباس. مجھے کوئی پوچھتا، 18 سال کے جوانوں نے مجھ سے پوچھا، اکبر آ گئے؟ 18-19 سال کے جوان. 13-14 سال کے نوخیز ملے، قاسم آ گئے؟ اور وہ محمد کی عمر کے ملے، اور وہ محمد آ گئے؟ میں صرف ایک ہی بات کہتا جاتا تھا کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا. وہ بیمار بتائے گا جو خیموں کے باہر بیٹھا ہے کرسی پہ. بھیڑ بڑھ گئی. محمد حنفیہ گھوڑے پہ سوار تھے. راوی نے لکھا جیسے ہی وہ پہنچے ہیں اور آپ نے بیمار کی حالت دیکھی تو محمد حنفیہ گھوڑے سے گر پڑے. اللہ اکبر، گھوڑے سے گر پڑے. فرتے جذبات میں دبانا چاہا. عابد بیمار نے کہا چچا مجھے زیادہ نہ دبائے، میری کمر پہ درے مارے گئے، مجھے داغ پہنایا گیا، میرا سارا بدن زخمی ہے چچا. ایک مرتبہ کہا تم سب لوگ آئے ہو، میری بہن زینب نہیں آئی؟ کہا چچا یہ جو سفید سر والی بہن کر رہی ہے یہ آپ کی بہن زینب ہے، اس لیے کہ تمازت آفتاب نے اور شبنم نے بیویوں کے چہروں کے رنگ بدل دیے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم اللہ. اب بیویاں چلی ہیں، بس یہ الوداعی مجلس ہے. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رڑائے. نارتھ امریکہ میں مقیم ہر شیعہ علی کا گھر آباد و شاد رہے، ہر انڈیویجول آباد و شاد رہے، ہر مریض کو شفا ملے، ہر مرحوم مومن و مومنہ کی مغفرت ہو. آپ ناظرین و ناظرات، حاضرین و حاضرات، بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت ہو، حوائج شرعیہ پوری ہو، آپ کو کوئی دکھ تکلیف نہ ہو، اگلے سال تک سالم و غانم رہے. بس اجڑ گیا تو بطول کا گھر اجڑ گیا. اور آج یہ الوداعی پرسہ ہے. کوہرام ماتم بپا تھا، کوہرام میں نے تو یہ جملہ بھی روایت میں دیکھا ہے کہ جب بشیر نے کہا نا قتل الحسین، ایک مرتبہ دراز قامت بی بی نے کہا صرف اتنا بتا شیخ جب حسین مارے گئے تو عباس کہاں گیا تھا؟
اس لیے کہ ممکن نہیں عباس زندہ ہو اور حسین کو کوئی قتل کرے. بڑا ناز تھا بنی ہاشم کو ابو الفضل العباس کی شجاعت کا. بس عزیزو بیویاں چلی ہیں. ایک بین بی بی زینب کا پڑھتا ہوں, ایک ام کلثوم کا. بین تو بڑے طویل ہے. بی بی ام کلثوم نے تو اس وقت بین کیا جب دور سے مدینہ نظر آیا, لگتا ہے یہ آج کی شب کا بین ہے یا کل کی صبح کا بین ہے. بی بی کہتی ہے مدینہ تجدنا لا تقبلینا, نانا کا شہر ہمیں قبول نہ کر. فبالحسرات والاحزان جینا, ہمارے دامن میں غم کے سوا کچھ نہیں, حسرتوں کے سوا کچھ نہیں. خرجنا من کے بالآلین جمعا رجعنا فی کے لا بنات ولا بنینا. مدینہ ہمیں قبول نہ کر, ہم گئے تھے تو بھرا گھر تھا, واپس آئے ہیں تو سکینہ و اصغر کو بھی نہیں لا سکے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی مر گئے. اللہ اکبر. اور اب بی بی زینب نے عجب پین کیا, عجب پین کیا. نانا, یہ زری کے قریب بی بی آ گئی ہے. نانا, نانا جب کوئی پردیس جاتا ہے عرب کا دستور ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے تحفے لاتا ہے. نانا میں شام گئی تھی, آپ کی امت نے مجھے تحفہ دیا ہے. یہ کہہ کے علی کی بیٹی نے اپنی آستین الٹ کے کہا یہ رسیوں کے نشان آپ کی امت کا تحفہ ہے. نانا ہمیں رسیاں پہنائی گئی, ہمیں قیدی بنایا گیا, بازاروں درباروں میں کھڑا کیا گیا. اجرکم علی اللہ. اور ایک جملہ تو ایسا کہا بی بی نے, نانا ہمیں پتھر مارنے والوں نے یہ بھی نہ سوچا آخر ہم بھی کسی کی بیٹیاں ہیں. اور بی بی ام کلثوم کا دل بھر آیا. کہا نانا ارمان یہ ہے ابو سفیان کی بہو بیٹیاں محلوں میں پردوں میں موجود تھی, اور تیری بیٹی کی بیٹیاں کبھی کسی بازار میں کبھی کسی دربار میں تشہیر کے ساتھ پھر آئی گئی. اور بی بی اندر آئی, بی بی نے حسین ابن علی کا خون بھرا کرتا نکالا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا خون آلود کرتا اپنے بھائی کا نانا کی قبر پہ رکھا. نانا کی قبر ہل گئی. بی بی زینب کہتی ہے نانا اپنے نواسہ کا ایک کرتا دیکھ کر قبر کو زلزلہ آ گیا, میرے کلیجے کا اندازہ کر. میں 70 قدم پہ دیکھتی رہی, میرا بھائی ذبح ہوتا رہا. ماتم حسین